how many of you want to create your own startup? About 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 15, I think 15 odd. Okay, great, that's nice. So, but let's first understand. I don't know what is the understanding of you among you 50. I definitely like to know what all you want to do. But let me take you through my journey and let me take you through my understanding about a startup, an enterprise, and beyond that. So it's in the first slide. Let's create brand. So here I'll do a small activity with you. How to create a brand. I'll ask the question. I would like to hear whose answer reaches me, my ear. I would like to listen to it, whose answer reaches my ear. So my question is, and I would need the immediate answer. My question is, what is your name? None of the answer reached my ear. And try it yet. Please stand up, Tyagi. So this is the brand created right now. In all this chorus, whatever he did, he stood up. Whatever he did. शायद उसने अपने laziness में ही last में बोला. But he stood up. So actually brand is created like that only. Please Tyagi, sit down. So that is how a brand is created. Matlab you'll be studying a lot in your class, but I feel, and everybody feels, this is the way a brand is created. There is no particular rule, regulation, written document, parameters, counting, formula to create a brand. But there is something other which a brand creation needs. And I can ensure you, अपने 2 साल की journey में, I am ready to be a mentor to people who actually wants to passionately go for startup. I can ensure you, आपके अभी के दिमाग के साथ आप आराम से अपना startup create कर सकते हैं. So going with the some words, what actually should count in our life is, your brand is not what you sell, it's the experience you deliver. Right now, Tyagi gave us an experience. And that is where the brand Tyagi is created. I am sure right now, 300 or 100 odd people over here, every one of us know Tyagi. Right? So, the experience is what is needed. And that is what we will take you through right now. I will take you through right now. And that is what Wow Wong Foods is all about. Wow Wong Foods is an experience in itself. The brand name is an experience in itself. Wow Wong. इससे क्या समझ आता है? Create your own brand ideas. I need to hear one voice जिसका भी आवाज सबसे ज्यादा है. Wow Wong. Whether माँ का प्यार, made by hand, whatever. हाँ? जहाँ भी एक माँ का टच आ रहा है, right? So Wow Wong. So this brand name itself speaks that it has something to do with माँ का प्यार, घर का खाना, healthy खाना. We can say that. So आ रहा है ना, इस brand name के साथ आपको नजर आ रहा है ना, वो सब feeling आ रहा है. So that is the way, what I said over here, experience is to be delivered in your brand, whatever you do, whatever you speak. So here, representing Wow Wow Foods, that is the experience that we want to deliver. But Wow Wow Foods से पहले, what was I? Dr. Devi said that 8 साल से I have been working in all these things I am here. Before that, I never thought of it. What was I before that? So, your journey, what I can say with my experience, the journey does not just go, एक दिन ऐसा आइंस्टाइन के सामने एप्पल गिरा और आइंस्टाइन ने डिस्कवर कर दिया कि ग्रेविटी है. क्या पर एप्पल गिरा और आइंस्टाइन को लग गया होगा वो ग्रेविटी वर्ड एग्जिस्ट करता है. उसके बाद उसने पक्का कुछ महीने काम किए होंगे ना उस ग्रेविटी वाली चीज पे. बट हम क्या बोलते हैं, हर जगह वही स्टेटमेंट आता है ना, एप्पल गिरा और ग्रेविटी डिस्कवर किया आइंस्टाइन ने. कहीं बैठा था, उसको एप्पल गिरता हुआ दिखा और वो ऐसे ग्रेविटी डिस्कवर हो गया. सॉरी, थैंक यू करेक्शन. न्यूटन ने बोला कि देखो किसी ने नहीं करेक्ट किया, एक ने करेक्ट किया, मैं भी बोलती जा रही थी. तो न्यूटन ने देखा कि ये गड़बड़ है, ये कुछ गड़बड़ है जो एप्पल गिरा है. एंड
it was not discovered at that moment, but in due course it was discovered. The same goes here. आज आप सोचना शुरू करोगे, आगे जाके होगा. मैंने कभी सोचा, my career is a long one. I started my career in 2000. आपकी तरह हमारा भी वही सोचना था, नौकरी मिलनी जरूरी है. क्या 2000 में स्टार्टअप कल्चर भी नहीं था, honestly. There was no startup culture at that time. But नौकरी मिलनी जरूरी है. I also had that thought morning. So there are many reasons. पहला तो पैसा ही आता है. मेरे पास में पहला पैसा आया कि पैसा अपने पास होना है, मेरे को इंडिपेंडेंट होना है, मेरे को डिपेंडेंसी नहीं चाहिए. शादी होने से पहले मेरी जॉब हो जानी चाहिए ताकि हमेशा जॉब कर सके. आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी बस, सेल्फ इंडिपेंडेंट. तो ऐसा सोच के मैंने भी जॉब किया, अच्छा जॉब किया. बट somehow there was something inside me, क्योंकि when I was in 7th and 8th तभी से ही मेरा वो दिमाग में था कि I should earn. तो 7th 8th में कैसे earn करते? I started teaching my own. घर में ही जो बंदे ने सबको पढ़ाती थी यार, I was earning. So that thought of earning was always there with me. नौकरी भी करती थी, but always I used to feel I should have something which I can do out of my own. So this is something I think here nobody must be knowing that 2009-10 में I felt I'm not able to do job, and this is for most of the girls over here, especially when you start having your own family life, बच्चे होते हैं तो बहुत मुश्किल होता है corporate life और अपनी life को manage करना. Now you have lots of rules and regulations there where you get a good maternity, but सिर्फ maternity से काम नहीं चलता, उसके आगे भी बहुत दिक्कतें आती हैं. एंड अब तो आई एम श्योर फादर्स को भी, वुड बी फादर्स को भी आएंगी, क्योंकि अब एक घर चलाना एक जने नहीं चलाते, दोनों मिलके चला. तो उस समय मुझे बहुत जरूरत होती थी कि मेरे को छोड़ना है. एंड वन फ्रेंड एक्चुअली आउट ऑफ अ ब्लू माई डॉटर्स नैनी लेफ्ट एंड आई वाज आल्सो जॉबलेस because I didn't have even one day to move beyond because I was alone. Generally parents don't stay with you, एक दिन में किसी को भुला भी नहीं सकते हो. So that time again वो कीड़ा का ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की अपना कुछ करते हैं. So I started making बिरयानी और अगल बगल सबको टिफिन सप्लाई करती थी. Then I did many things for 2-3 years, but somehow at that time I couldn't succeed. I feared. 2012-13 again I got back to my job, some job. I did lots of work again. And एक इसलिए भी मैं ये बता रही हूँ because I failed. Why I failed? Because I didn't have that much experience with me. What I feel now. So experience in the sense knowledge नहीं था. I not say experience, but knowledge about business नहीं था. I started, and yes, I am not an MBA. For all of you, I am not an MBA. I started my job just after my graduation. So MBA का जो पढ़ाई होता था वो भी मैंने नहीं किया हुआ था. तो इसलिए I didn't have any idea about how to run a business. I failed. Again I went to a job. Thankfully अब मैं जब जॉब करना शुरू की, I got a better positions. I excelled in my life. But वो दिमाग में रहता था हमेशा. I don't want to work in a strict. पूरा सब हम ही कर रहे हैं, सब खुद कर रहे हैं, तो अपने लिए क्यों नहीं कर रहे हैं? What I used to feel that whatever I am doing, उस हिसाब से what I am earning is less. So that was always there. And 2018 again and a spark came in my life. कहते हैं ना, you manifest. शिद्दत से चाहो तो चीजें मिलने लग जाती है. So 2018 again I got a opportunity which got me Wow Home Foods, Millet Magic Foundation, and now today there's no way I can look back and go back to job because I know now I am not just having it for myself, but I am having about अभी in current scenario with 3,000-4,000 people depending on my foundation itself. So I can't go back. So this is a small story about myself, why I chose entrepreneurship, and I said everything I do is I had that thing in my mind कि entrepreneurship करनी है, अपना business करना है, तो इसलिए मैंने बहुत कोशिश करके मैं यहाँ तक पहुंची. This story will help you understand आगे जाकर के where you will be getting the question. हमेशा सक्सेस मिलता है क्या सब एंटरप्रेन्योरशिप करके भी, या इवन जॉब करोगे तो आपको जरूरी नहीं है फर्स्ट टाइम आपको प्रमोशन मिल जाए, राइट? सो दैट इज द वे थिंग्स वर्क.
So let's get back to where we started from. We all talk about what is a startup. Let me give a question to you. What is a startup? Good name? Avirant Tiwari. Avirant. Very nice answer. In fact, apt answer. आपने थोड़ी बहुत स्टार्टअप पे स्टडी की है और समझ में आ रहा है बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. स्टार्टअप वर्ड का मतलब ही 10 साल के अंदर का ब्रैकेट होता है. आप 10 साल के अंदर जब तक है तभी तक आप स्टार्टअप है. एंड द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस जो आपने स्टार्ट किया, मतलब जरूरी नहीं कि 1-2 साल तक ही आप स्टार्टअप है. आप यूनिकॉर्न बन के भी स्टार्टअप रह सकते हो 10 साल के अंदर भी, राइट? So that is what a startup is. And what is a lean startup? Small scale, small funds. Basically, startup word is itself is a small one. कि जरूरी नहीं है आप एक इंडस्ट्री बना रहे हो जहां 100-200 करोड़ का आप पैसा चाह रहे हो. एक 10,000 लेके भी काम शुरू हुआ is a startup, and that's why we call it a lean startup. यहाँ पे lean जो word used है basically financial terms में ही है because small. Very small. Small meaning very small. So, that is why it's called a lean startup. So, right now, I am talking to you about lean startup because all of you are eligible to start a lean startup right now. Over here. Idea दो? अभी किसी का कोई assignment करेगा, free में करेगा. So, that's a startup. You earn 500,000 rupees out of it. Money exchange होगा, that's a startup. किसी को कोई टॉपिक पे प्रॉब्लम है, दूसरा पढ़ाएगा, फ्री में कर देगा. कुछ नहीं तो पार्टनर एक्सचेंज तो करोगे ही करोगे, मुझे पता है. करोगे ना? ये सुन लो, जोर से बोलो. So all of you are already heading towards or already all through a startup phase. You are already having a lean startup with you. बस आपने वाव फूड जैसा नाम नहीं दिया है उसको. So you just need to create a brand out of it. Like brand Kyani right now got created. So it's just a name to be given to your lean startup which you already have by with you. थोड़ा सा उसको स्ट्रक्चर कर देते हैं पैसे के लेन देन हुए, बट उसमें क्या क्या होना चाहिए? You need a planning. So right now when somebody is doing somebody else's assignment, मैं गलत जगह बोल रही हूँ, I know यहाँ डांट भी पड़ सकती है आप लोगों को, but everybody knows that happens. हेल्प तो किया जा सकता है ना फ्रेंड्स को. तो कहीं भी आप कुछ भी कर रहे हो जहां पे आपको लगता है अर्निंग की अपॉर्चुनिटी है, थोड़ा सा उसको प्लान कर लो. एंड कॉलेज में तो मुझे लगता है बहुत ऑप्शंस मिलते हैं, अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं जहां पे आप छोटे छोटे स्टार्टअप इजीली स्टार्ट कर सकते हो. व्हाई? बिकॉज यू डोंट हैव एनी लायबिलिटीज और एनी थिंग दैट यू नीड टू थिंक अबाउट. 24 आवर्स का टाइम है, मम्मी पापा नहीं है बोलने के लिए कि बेटा घर में 6 बजे तक आ जाओ, हॉस्टल के रूम में 5 बजे तक आ जाओ, पढ़ाई करो बुक लेकर के. नंबर्स आपको आने, आपको पता है आपको आ जाएंगे. सो लीन स्टार्टअप कैन बी स्टार्टेड ओवर हियर. कीप प्लानिंग, कीप स्ट्रेटेजाइजिंग, कीप रिपीटिंग इट. एक जगह से कहीं आपने मनी कमाई, उसको प्लान कीजिए, स्ट्रेटेजाइज कीजिए, रिपीट करते गए. बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ मैंने नहीं लिखा है. इट्स अ लीन स्टार्टअप. Compliances should be fed. Legalities should be maintained. नहीं तो फाइन लगेगा. तो यहाँ के आप कोई गड़बड़ स्टार्टअप करोगे तो इमीडिएट फाइन लगेगा. मैं ये बिल्कुल छोटे एज में आपको बोल रही हूँ. यहाँ पे आपने कुछ लेन देन करी कॉलेज के एटमॉस्फेयर के हिसाब से, वो गलत है. कंप्लायंसेस नहीं फुलफिल हुआ, सो यू विल बी फाइंड फॉर दैट. सो इसलिए स्ट्रेटेजाइजिंग इज इम्पॉर्टेंट that you give it a proper form. So how many of you are going to start your lean startup from tomorrow? Man, it was 15 people right now, no one. किसी का कल नहीं शुरू होगा. चलो महीने बाद में किसका किसका शुरू हो जाएगा? एक है, 2 है, 2 एक वहां वो पहले भी उठा रहा था. और एक चीज याद रखना, स्टार्टअप में देखना, इधर उधर देखना मत कि किसने हाथ उठाया. मैंने आपको देखा, आप इधर उधर देख रहे थे कोई हाथ उठाया नहीं, फिर आपने नहीं उठाया. यही सोच नीचे लेके जाएगी. ये इसमें 250 में से कोई नहीं खड़ा होगा जब आप यहाँ मेरी जगह में खड़े होगे, आप ही खड़े होगे, राइट? सो डोंट सी हियर एंड देयर. वो एक दिन में स्टार्ट करने को तैयार है और 2 जने महीने में स्टार्ट करने को तैयार है. कितने लोग 6 महीने में स्टार्ट करने को तैयार हो? 10, 7, 8 लोग. ग्रेट. 6 महीने के अंदर, साल भर के अंदर
और तो मतलब अभी हमारे पास 12-13 लोग हो गए, और 2 साल के बाद कितने लोग स्टार्ट करोगे? आगे बढ़ना होगा, खोलना होगा। तो 2 साल के बाद कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। You're doing it, I know. Yeah, tell me why to after 2 years आप प्रॉपर प्लेसमेंट के आज भी तो कर सकते हो मेरा पैसा मांगे। मैं आज आपको बोलती हूँ आप एक अच्छा आइडिया दो, मैं आपको 10 लाख दिलाऊंगी, 10 लाख। कितने लोग कर दोगे? आज मैं बोलती हूँ तो 10 लाख दिलाएंगे। 2 दिन पहले इन लोगों ने सौरभ जी का ये अटेंड किया होगा ना, इंक्यूबेशन वाला, आप लोगों ने अटेंड किया था। वहां पे आपको पता चला था ना 10 लाख मिल सकते हैं इमीडिएटली, तो इतना क्या सोच रहे हो? विद अ गुड आइडिया, आज आप आइडिया दो, महीने के अंदर आपको 10 लाख रुपए मिल सकते हैं। डेफिनेटली प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, मुंह से बोलने से नहीं होगा। लॉट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैज टू बी फिल्ड। तो अगर फौरन जी आपको 10 लाख रुपए दे देते हैं तो कितने लोग 1 महीने के अंदर शुरू करोगे? नाउ लेट्स गो बियॉन्ड लीन स्टार्टअप। लेट्स टॉक अबाउट what is MVP. I just want these 2 words. You should know. After that we will discuss in detail. Why? Because right now today we have to understand these 2 words. मैम आपका क्या सोच है, क्या आप करने वाले हो? I want to express a link between the environment and agriculture, because everyone know that agriculture is the form which create a global warming. जैसे कि आपने ये मिलेट शुरू किया, ये मिलेट वाले जितने भी ओट्स होते हैं और ये सारी वीड्स ग्रेन होती है, ये ग्लोबल वार्मिंग नहीं कर ये और वाटर फ्रेंडली भी होती है, पानी तो का। आपके लिए MVP क्या होगा? और ये नहीं मालूम, मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मैंने फिजिक्स से BSc किया है, तो ये सब अभी मैं सीखूंगी। अच्छा, ओके, ग्रेट। सो MVP कुछ नहीं है, आप हम लिटिल मीनिंग को छोड़ दें। आपके पास 10 लाख रुपए आने वाला है, आपको पता है सीड फंड के थ्रू, राइट? तो आपको कोई आपका क्या ब्रांड होना है? वहाँ आई जस्ट मिस्ड योर नेम, व्हाट्स योर नेम? अविरल। आपका क्या प्लानिंग है? क्या प्रोडक्ट होगा आपका? सर रिजर्वेशन बेस्ड सर्विस। रिजर्वेशन बेस्ड सर्विस, राइट? आपके लिए MVP क्या होगा? जिस कॉलेज में बैठ करके MVP क्या कर सकते हो? एक एग्जांपल देते हो। रिजर्वेशन में सपोजिटली मैं, बिकॉज यू डोंट वांट टू से दैट ट्रायल से ट्रेन टिकटिंग पे आप काम करना चाहते हो, राइट? एक एग्जांपल, आपके लिए MVP क्या होगा? बस द सर्विस आई एम प्रोवाइडिंग। कल से आप इन लोगों की टिकट करना शुरू कर दो। That's MVP. I'm trying to make you understand what is MVP. जो प्रोडक्ट आपके पास, जो भी आप सर्विस या प्रोडक्ट करना चाह रहे हो, जो तुरंत आप क्रिएट कर सकते हो, वो है MVP. Please. मेरे लिए MVP क्या था? Wow Foods में. Now coming back to Wow Foods. Wow Foods is a brand where we make millet-based products which are healthy, which have more glycemic index definitely. Millet का है, इसलिए हम कोशिश करते हैं चीनी ना यूज करें, शुगर फ्री रहे। नहीं यूज करते हैं हम जैगरी यूज करते हैं जहां में भी जरूरत है, और नो फ्राइंग, बेक कर। तो मेरे लिए MVP क्या हो सकता था 4 साल पहले? एंड आई गेट दैट ऑनेस्टली व्हेन वी प्लान दिस वाओ फूड्स, कोविड वाज गोइंग ऑन। मैं मिलेट बेस्ड एक प्रोजेक्ट प्लान कर रही हूँ, आई कांट इवन गो आउट। आई स्टार्टेड मेकिंग लॉट्स ऑफ मिलेट बेस्ड रेसिपीज एट होम, like garlic bread, pizza, bada pav, and somehow it tasted good. I started making it and I started putting it on my Instagram. And you won't believe, I took almost 4 to 5 sessions of ladies जहाँ मैंने सिखाया। हर एक सेशन में वो, it was through one organization called Wiki, वो 150-150 रुपए लेते थे और मुझे उसमें से 100 रुपए देते थे। तो मैंने बैठे बैठे वहाँ 4-5 हज़ार रुपए सिर्फ ये 3-4 सेशन से कमा लिया। And that was my MVP, where I invested a bit in my product. और मैंने उसको बेच करके, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन बेच करके मैंने वहां पैसा भी कमाया. So that became my MVP. But if you are thinking of a startup, you don't need to think big right now. You can just, as we said, reservation है. करना शुरू करो, आपको प्रॉफिट लॉस पता होना शुरू हो जाएगा. That's your first lean startup का एक छोटा प्रोडक्ट. Definitions बड़े होंगे. You can read it out, but that is what a startup can be. Smallest, as easiest as possible. I hope I'm clear.
But MVP का मतलब होता है प्रोडक्ट को एक लेवल से दूसरे लेवल ले जाना, राइट? A viability of a product is, this is about lean startup and MVP. And when we talk about MVP, then you have to keep evolving. As I said, एक प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप बनाओगे, हमने भी बनाया. सबसे पहले कुकीज एक जेनरिक सा प्लास्टिक का बॉक्स में डाल के हमने स्टार्ट करा था. फिर we keep evolving, kept evolving, and right now we have very good looking packaging, clean pack, and हमारे प्रोडक्ट की टेस्ट, टेक्सचर सब चेंज हो गए. So for a startup to start with, you can start small, but you have to keep evolving. Maruti started with, सबसे पहला मारुति का ब्रांड कौन सा था? 800 से भी पहले एक, मतलब 800 का भी एक डिजाइन वर्जन आया था कुछ. वो मतलब 800 का वो लुक एंड फील में वो अलग था थोड़ा. उसको हम माचिस का डब्बा बोलते थे हमारे में. But that was slightly different. Then 800 ही आ रहा है, but 800 का look and feel अलग था. And then right now you have all these Grand Vitara and whatnot. That is your MVP. It started from 800, now evolved into so many different products. इतने में स्टार्टअप हो जाएगा? Is it enough? No. और क्या चाहिए? आज आप जब MBA पढ़ने आ रहे हो, आप किसी ने जाना है आपके दादाजी ने क्या पढ़ाई करी थी? किसी को पता है? बताओ. MSc मैथमेटिक्स. और कोई? और कोई? दादाजी बोलो बोलो. पापा? 10th, 12th, graduation, distinction होता था पहले इंवर्ड, and that used to be best of the thing, right? फिर हमारे समय में आया हाँ 80-90% चलेगा, right? I hate you women. I got 10 में 84% मार्क्स. आप लोगों को ये लगता होगा यानी she is a big failure. 84% मार्क्स. 3 दिन न्यूज़पेपर में नाम छपा था. तो मतलब बट आज 84% में लोग कोई खुशी नहीं होता, कोई खुशी नहीं होती वहां पे. तो things have evolved, right? Things have evolved. Same is the like आपके पढ़ाई में things have evolved. Same have evolved in the ecosystem. So here now on, I'll just take you through my journey, what we did, because that will help you understand what we are and what we did, how a startup can really be acceptable and can grow. So here I'm talking about Merit Magic Foundation. What is Merit Magic Foundation? It's a trust made by us. It's a trust made by us. And what did we thought about in that was, we thought about sustainability, resilient product, climate friendly product, and everything should be impactful. Why did I thought so? Because in today's date, making a product is just, as I said, यहाँ बैठ के आप product बना सकते हो. You can make it, no? Right now what we talked about, lean startup and MVP, हम तो यही बैठ के product बना सकते हैं. और हो गया brand ready. But it's not enough. We have to do a lot. So with those thoughts, when I first failed in my first business in 2011-12, and when I started in 17-18, I had in mind that there were few things which were missing before, which I should take into consideration now. So what should be now, which is different from previous business, was these things. So whenever you start thinking of starting a startup, like you talked about resolution thing, this madam talked about something related to agriculture and climate friend, you have to keep in mind extra features that you can add on. आज आप MBA करोगे, MBA के बाद कहीं और भी अगर आप अप्लाई करते हो तो क्या क्या जरूरत होती है? केवल मार्क्स से हो जाता है ना? Only marks will do? और क्या क्या जरूरत होती है? सर्टिफिकेट्स, आपने कहाँ का इंटर्नशिप किया, इंटर्नशिप के सर्टिफिकेट्स कितने अच्छे आए, कॉलेज में आपने किस किस क्लब में पार्टिसिपेट किया, वहां से क्या क्या किया, कम्युनिकेशन स्किल्स भी चाहिए, तो बहुत कुछ चाहिए. तो वैसे ही टू मेक योर स्टार्टअप actually viable in the market, you have to come up with something extra always. Innovate, keep innovating. Innovating मतलब ये नहीं है कि प्रोडक्ट को बहुत हाई फाई बना दो. मार्केट जो बोलेगा कि अगर 5 रुपए का प्रोडक्ट है, आपका प्रोडक्ट 50 रुपए का. क्यों? क्योंकि इनोवेट कर लिया.
अरे लेकिन मार्केट एक्सेप्ट कैसे करेगा? सो इसका इनोवेशन का मतलब ये नहीं है कि आप प्रोडक्ट हाई एंड बना दो. इनोवेट का मतलब है आप क्या क्या चीज उसमें ऐड कर रहे हो, इंग्रेडिएंट एक्स्ट्रा क्या ऐड कर रहे हो, राइट? सो these are the ingredients which we added in our startup: sustainability, resilience, climate friendliness, and impactful. And these are the reasons why today I am here also, because these make me stand away from what maybe in my category other startups are doing. So basically sustainability का मतलब दो तरह से आता है. एक जो मैम ने बोला, जो आपको climate friendly होना चाहिए. See, that is okay, that is from climate point of view. But when we talk from product point of view, sustainability is something which market accepts and accepts for a longer duration. अभी कोई product बना सकते हो, खाने पीने वाला कोई product which is sustainable? किसने बोला? दो से बोलो. नहीं. Best example of sustainable product. मैगी कब लॉन्च हुआ था? और सही बोला पता नहीं, क्योंकि हम भी बच्चे थे तभी. इतना पुराना है मैगी, और आज तक वही मैगी वैसे ही चल रहा है. It's not climate friendly, it's not healthy, whatever you want to say. but यहाँ सबको ही खाते हैं. तो खाते हैं ना, सबको ही खाते हो. 200 लोगों की तो बात नहीं है मुझे, सब खाते हो. तो ये मैगी सस्टेनेबल. So for a product to be sustainable, it should last long. It's difficult to make something like Maggi, but we can always try it and look for it which can be sustainable. Now what we needed for making our product sustainable, Wow Foods. अब 2-3 कैटेगरी. एक तो हो गया प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो चलना चाहिए. कोविड के बाद सबको क्या चाहिए होता है? हेल्दी फूड्स. हेल्दी फूड्स. भाई नहीं बात करोगे तो मैं भी चुप हो जाऊंगी. हेल्दी फूड चाहिए. हेल्दी फूड. और क्या चाहिए आपको खाने में? हेल्दी फूड तो ठीक है, सब हेल्दी फूड खा लेते हो, ओट खा लेते हो, दलिया खा लेते हो. और क्या चाहिए? टेस्ट चाहिए. तो आपको हेल्थ के साथ टेस्ट भी चाहिए. So that was our thought on sustainability and to create Wow Mom. Why Wow Mom? Now I'll come into this and I'll answer it. Because आपके पेरेंट्स, जिनको सबसे ज्यादा, स्पेशली माँ, जिसको सबसे ज्यादा परेशानी होती है आपको खाना खिलाने में, क्योंकि आपको भिंडी में भी टेस्ट चाहिए, करेला में भी टेस्ट चाहिए, लेकिन माँ को खिलाना नहीं हो हेल्दी फूड, तो कैसे खिलाए? तो उसको ऐसा कोई प्रोडक्ट चाहिए मार्केट में जिसको खाते ही आप लोग क्या बोलोगे? वाव बोलोगे. सो मॉम will feel wow about it, so it is Wow Mom. And here we have defined mom का एक और definition. Can somebody think? Blindly thought mom का मतलब और क्या हो सकता है? Acronym मतलब like MOM can be defined. Oh, you said it right. It is mirror image. Wow Mom is mirror image. Wow and mom are mirror image of each other. Though our logo, our designer didn't agree to it, so we have this logo. Otherwise we wanted that. But mom का एक और मतलब है MOM. But that's nice. चलो यहाँ पे लिखा है. Mom का एक और मतलब है magic of millet. मतलब this I feel actually happy about if somebody catches it, and there are many people who have caught it that mom means magic of millet. So Wow Mom का दो ये है, that is magic of millet, and Wow Mom का defined it by. So when we created this brand, all these thoughts went into thing that how Wow Mom can be sustainable, how a millet-based brand can be sustainable. First thing was creating the brand name in such a way which actually relates to people. So that is what we created. And पीछे से Millet Magic Foundation क्या कर रहा था? Millet Magic Foundation के पास एक बहुत बड़ा चैलेंज था. मिलेट जो एक मिलेट ऐसी चीज जो एग्रीकल्चर में ग्रो भी नहीं हो रहा है, तो कैसे ग्रो कराया जाए? फार्मर, हाउ वुड फार्मर्स गेट इनटू फार्मिंग ऑफ मिलेट? Right now in last 2 years, maybe आप लोग, I don't know how many of you are following millet based diet 2 साल से जो चल रहा है. Do you follow it? Anybody?
सर आप कर रहे होंगे, वो मैम कर रही है बिकॉज वो क्लाइमेट चेंज पे काम कर रही है कुछ. सो ये आई कैन अंडरस्टैंड यंग किड्स डोंट, बट लास्ट 2-3 years मिलेट पे बहुत काम चल रहा है. आपकी फैमिली में, आपके घर में तो आई एम श्योर लोग मिलेट के बारे में बात करना शुरू कर दिए होंगे. Is that so? Yes, ma'am. Am I right? Yes. So that is because lots of work is being done on millet and that's why talks are happening. But right, आपकी तरह अभी भी बहुत लोग हैं जिनको नहीं पता है, and even farmers are not ready to adopt it. They don't want to do the farming. अब हमें अगर मिलेट चाहिए कहाँ से मिलेगा? अगर मुझे मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट बनाना है, मिलेट ही नहीं मिलेगा तो सस्टेनेबिलिटी रही नहीं. So that's why when we started this project, we have to think on backward as well as forward integration. Now ये दो words का क्या मतलब हो? What do you mean by backward integration and what do you mean by forward integration? Any idea? So yeah, well said. So in nutshell, backward is आप जहाँ खड़े हो. अगर मुझे मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट बनाना है तो मुझे उससे पहले क्या चाहिए? इस बैकवर्ड इंटीग्रेशन. तो क्या चाहिए? मुझे रॉ मटेरियल चाहिए, और अगर प्रोडक्ट बन गया तो आगे क्या चाहिए? मार्केट चाहिए. तो मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स के लिए मेरे को दो काम करना बहुत जरूरी था. दैट वाज बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन. ब्रांड सोच लिया, प्रोडक्ट सोच लिया, बट ये अगर हम नहीं सोचेंगे तो सस्टेनेबिलिटी नहीं आएगी मेरे प्रोडक्ट की. सो फ्रॉम डे वन, whatever product you choose, be it in other sector, service sector, आपको सस्टेनेबिलिटी शुरू सोच के चलनी पड़ेगी कि सस्टेनेबिलिटी का मतलब है दो एंड को पूरा मीट करना. क्योंकि when you are being a startup, आप कोई भी वैल्यू चेन के बीच में हो. You understand value chain? Any idea what is meant by value chain? कोई भी जगह का वैल्यू चेन वो होता है कि राइट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड. एंड कहाँ होगा? एंड तो सब आप जान रहे हो. कोई भी प्रोडक्ट का एंड कहाँ होगा? कंज्यूमर. एंड इज कंज्यूमर. सबका एंड कंज्यूमर होगा, बट स्टार्ट कहाँ होगा? मैन्युफैक्चर, रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल अभी बिल्कुल लोएस्ट लेवल. आप किसी को गाड़ी बनानी है, आपको पार्ट्स चाहिए, पार्ट्स के नीचे लॉजिस्टिक सब आ जाता है वैल्यू चेन पे. तो वैल्यू चेन पे क्या क्या आता है? फ्रॉम योर मेकिंग ऑफ रॉ मटेरियल, मेकिंग ऑफ रॉ मटेरियल वहां से शुरू होता है. तो वहां से रॉ मटेरियल आया, रॉ मटेरियल क्या आता है? फिर लॉजिस्टिक्स इमीडिएट आ गया, फाइनेंशियल प्लानिंग आ गया, आपका प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट के आगे मार्केटिंग आ गया. उसके बीच में भी 2-3 स्टेप्स रहते हैं. मार्केटिंग से पहले आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आएगा, आपका रिटेल चैनल आएगा, या अगर आपका दूसरा चैनल है तो सर्विस सेक्टर है तो उसमें AI बेस्ड है तो ऐप आएगा. तो वैसे ऐसे करके आपका वैल्यू चेन बनता है. तो एक कंप्लीट वैल्यू चेन को कवर अप करना बहुत जरूरी है. जब आप एक प्रोडक्ट सोचते हो तो आप उस वैल्यू चेन में सब जगह नहीं हो. यू आर नॉट देयर एट द रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग फेज, या आप कंज्यूमर भी नहीं हो. लेकिन आप जब एक प्रोडक्ट डिफाइन कर रहे हो, प्रोडक्ट सोच रहे हो एज अ स्टार्टअप, आपको ये पूरा वैल्यू चेन को लेके चलना पड़ेगा. तो दैट इज द वे वी डिफाइन इट. हमारा वैल्यू चेन क्या होगा? लेट्स गो इनटू द मिलेट बेस्ड एग्रीकल्चर. कितने लोगों को एग्रीकल्चर का थोड़ा भी आइडिया है? 1, 2, 3. थोड़ा बहुत तो होगा ही. सबको ही घर पे कुछ नहीं तो गार्डन तो होगा ही, राइट? मम्मी वो किचन गार्डन तो रखती होगी, या किसी ना किसी घर में देखा होगा. So that becomes millet का first phase. That is raw material. That is millet. कौन उगाएगा? That is the farmers. So for me, value chain में सबसे नीचे कौन आ रहा है? Farmers. तो मेरे लिए backward integration बहुत जरूरी था, क्योंकि farmers thanks to green revolution क्या क्या उगा रहे हैं? ग्रीन रिवोल्यूशन से हमें क्या मिला? Wheat and rice. तो ग्रीन रिवोल्यूशन से वो wheat and rice majorly they are growing. What else we need? Cash crops and कुछ वो भी चल रहा है. But what we are not having it, which farmers are not growing, is millet. Why? Because millet is nowhere in value chain of any of the products in the market. So that becomes a challenge. I am trying to get into a sector which is completely new. So for me, farmers was the main person, and consumer again. Why? Because consumer भी मिलेट नहीं खाता है, पता ही नहीं है मिलेट क्या है.
So I was getting into a completely challenging product. But why I felt the challenge can be taken? Because when I started thinking, at that time only this thing called COVID came in. And then we realized that organic, millet, healthy food is the only way forward. Whatever you do for next 5-7 years, everybody will move into this. So what I started thinking, as a typical business person, as a typical person who want to earn, मैंने क्या सोचना शुरू किया? आज भले ये पैसा मुझे ला दे, but आगे यही है, right? Future is this. Future में there will be good products which will be needed into a sustainable product. But आज उसको market करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? Tasty बनाना पड़ेगा and healthy तो है ही. So that's the way the complete sustainability part we started thinking. And then came the challenge. कि अगर farmers को involve करना है, तो कैसे involve करें? So what in nutshell we thought, we will keep our processing plant in such a place where farmers are there. Where farmers की families processing plant पे काम करेंगे, तो हमारे को दो फायदा होगा. Farmers को लगेगा ये raw material grow करने से मेरा consume हो जाएगा, लगेगा ना? और दूसरा एक फायदा क्या होगा? बताओ. Labor you will get at a very economical rate, क्योंकि आप गांव में जा करके प्लांट लगा रहे, तो आपको मैन पावर सस्ती मिलेगी. एट द सेम टाइम जो आपको रॉ मटेरियल चाहिए वो भी उगा दोगे. So this was the thing which went into our mind, and we went into a complete rural area. Though lots of challenges were faced. It's not easy to skill the completely unskilled masses of rural India. But today, after 4 years, we feel satisfied in saying, कोई छोड़ के नहीं जाता है, attrition is zero. And जो skill हो गए वो आपके साथ बंधे हुए नहीं, दूसरी जगह नहीं जा रहे, क्योंकि people are yet very cagey on putting up a industrial unit in a rural area. हमने हिम्मत कर ली और कोई वहाँ हिम्मत नहीं कर रहा. तीसरा ये तो और बहुत अच्छा फायदा होता है, जो एज अ स्टार्टअप you people will also like it. Normally स्टार्टअप क्या होता है? शहरों में गुम हो जाते हैं. We are the shining star. मतलब मैं 15 दिन जो उधर रहती हूँ, मुझे लगता है कि we are the only one celebrating. So that's such a great satisfaction that I felt so much for the community, that people have got something as an employment, and what I am getting in return, whatever I need, but at the same time, it is overlapped with a huge amount of satisfaction. Abhi recently मैं गई हुई थी उधर. By the way, my unit is in Orissa, in a very interior area of Orissa. How you will relate? Yes, President of India जिनका उनका जो district है, हम उसे और वो मैडम उन्हीं के district में हम काम कर रहे हैं with Sarkar tribals, and I have 70% women workforce working with me, all tribals. So, and those are illiterate, they have not known anything, not known machines also, but thanks to us, in 4 years, now they are supervisors in the machine. So that's the way we have skilled them. And now, recently, a new collector joined in our area, in our district. So as an industrialist, we have to go and meet them. So abhi मैं गई थी उनसे मिलने. He was so happy. He saw that it's इतना बड़ा unit यहाँ पर है. So like we feel so proud that okay, we are big. तो हम यहाँ जहाँ खड़े हैं यहाँ पे तो we are nothing. The amount of big units you have, but there we are very big. So that also is a satisfying thing for us. So that's again a learning point what I can give it to your people, that if you think of putting up a manufacturing unit, थोड़ा logistical issues आएंगे, but always choose slightly interior area. Don't stay near the urban areas. Everything will be very costly. But always keep one office in the urban section, because जो consumer side है वो urban ही. So these are the learning which we have learned in that due course. जो मैं अभी बोल रही हूँ, but 2 साल पहले we were facing challenges because of that. So this is how we started. हमारे पास जो हम जब अब स्टार्टिंग में हम फैक्ट्री लेकर हमारे को खोलना है यूनिट, लेबर्स ये चाहिए, हमारे को वर्कर्स चाहिए. How would you do the interviews? In rural India, how will you do the interviews? Where people are illiterate,
एंड देयर वाज अ लैंग्वेज बैरियर आल्सो बिकॉज वहाँ पे कोई हिंदी नहीं बात करेगा एंड वी वर फ्रॉम अ हिंदी स्पीकिंग बेल्ट दैट वाज देयर. किसी को कुछ नहीं आता है, आप फैक्ट्री का मतलब वो नहीं जानते, मशीन्स का मतलब वो नहीं जानते, तो कैसे हम लेके इंटरव्यू. So there, what we did a 3 days camp over there, and इसमें फोटोग्राफ नहीं है वो. What we did, we made, हमारे को जिस काम के लिए लोग चाहिए थे उस हिसाब से हम छोटे छोटे उसके स्किल सेट टेस्ट करना शुरू करें. जैसे हमारा पापड़ भी बनता है तो हमें देखना था वो पापड़ भी पाएंगे. तो देयर लेडीज जो हमारे को एक एक तेल के दिखा रही थी एंड वी वर चेकिंग क्या स्पीड से वो कर पा रही, बिकॉज वी नीडेड स्पीड. सेकेंड, मेजर करना है उनको, हर चीज मेजर करके डालनी है. हमने एक मेजरिंग ये दिया और वहाँ पे कुछ रख दिया कि आप मेजर करके इतना मेजर करके दो. तो दे स्टार्टेड शोइंग, जो कर पा रहे पता चल रहा है, जो नहीं कर पा रहे रह जा रहे हैं. हाँ, हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन. व्हाई नीडेड? जब आप मशीन पे काम करते हो, आप लोग मशीन पे काम किए हो? अच्छा, क्रिकेट खेलते हो सब? मोस्ट ऑफ यू. बैडमिंटन खेलते हो सब कोई? एग्जैक्ट टाइम पे बॉल को कैसे मारते हैं या शटल को कैसे मारते हैं? दैट इज फिजिक्स में बहुत कुछ पढ़ते हैं, बट इन लेमैन्स लैंग्वेज इट इज हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन. तो जब मशीन चल रहा है, अब नूडल्स बन रहा है, नूडल्स में शीटिंग होती है, मशीन चल रहा है, आपको सही टाइम पे वहां पे फ्लावर इनपुट कराना है, या फिर जैसे बन के भी निकल रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं हाथ का इंटरफेरेंस रहता है. हाथ इतने ही समय के लिए रहना चाहिए ताकि मशीन में फंसे नहीं, आपका हाथ गलत समय पे अंदर ना जाए. हैंड आई कोऑर्डिनेशन. सो इन अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैंड आई कोऑर्डिनेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो दोस नीड्स टू बी चेक. हमने सब चेक करके बहुत अच्छी तरह से हमारे को करीब स्टार्टिंग में अबाउट 100 पीपल भी नीडेड. We got an interview round of 3,000 people. So that was the amount of candidates who came to us, and we were completely lost for two. Anyways, we went ahead, we started the unit, things started. We had about lots of ladies again there. लड़के थे because 3 shift पे काम चल रहा था, तो every shift में we can't keep ladies. Then we realized ladies are not going near the machines. We went, we asked, what is the issue? They were so scared. उन्होंने आज तक कोई मशीन नहीं देखी थी और वहाँ फुल स्पीड में नूडल मशीन चल रहा था, बेकिंग यूनिट गर्म थी. तो हमने उनको ऑप्शन दे दिया 15 दिन आप ऐसे ही खड़े रहो. This I'm talking about 3 years back. Today I have 3 of them who are now the bakers, the supervisor in baker, 2 in noodle ये, और ये जो है मेरी पूरा यूनिट का डे टाइम की सुपरवाइजर है. And these were the ladies who were not ready to work. So what I'm saying that these are the things we feel good when it comes down. At that time it was a great challenge, we didn't know what to do. But this is what comes up. What I'm wanting to say that things changes as and when you go, but starting with there will be huge amount of difficulty which will try to pull you down, but we have to keep moving, be resilient, our perseverance should be strong, so that we should see your work, in fact you should see your work after 3 to 4 years, and then you'll understand kahan se kahan tak aa gaye. Getting back to again products again, I'll talk about products. We have been talking about how backward integration came in, but forward integration में product कैसे हम define करें. How I thought of millet everything okay, but हमारे challenges क्या क्या आ सकते हैं, हमने backend में बता दिया क्या क्या backend integration में challenges. Now forward integration में क्या क्या challenges. So on consumer front क्या क्या challenges आएंगे. Where we were getting into there was huge competition. Because हमारी कैटेगरी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, और कैटेगरी क्या था, मैगी. मैगी को टेस्ट को कंपीट करना विद मिलेट, आटा तो कर नहीं पाया, हम क्या करेंगे, राइट. तो हम वहां जाके कंपीट कर रहे थे. वहां क्या था, गुड्डे कुकीज. गुड्डे को मैदे की कुकीज को हम कंपीट करने वाले थे मिलेट की कुकीज पे, जहां ओट और आटा उतना नहीं चल रहा था, हम उस कैटेगरी को जा रहे थे. तो इट वॉज अ ह्यूज ओवरऑल, इट वॉज अ ह्यूज चैलेंज, बट हमने वहां पे कुछ अच्छी चीजें भी देखी कि अवेयरनेस शुरू हो गया था 2 साल पहले. अभी
इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट हो गया, कोविड के कारण हेल्दी चीजें लोग खाना शुरू कर दिए थे, एग्रीकल्चर में बहुत मैटर इज अबाउट टू वर्क ऑन, हम देख ही रहे हैं कि कितना प्रॉब्लम हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के कारण वाटर का प्रॉब्लम हो रहा है, एग्रीकल्चर में इश्यूज आ रहे हैं, लोग नहीं कर रहे हैं, फार्मर्स फार्मिंग नहीं कर रहे हैं। तो इसमें फायदा क्या है, ऐसा क्रॉप चाहिए जो क्लाइमेट फ्रेंडली हो, रेजिलिएंट हो, सॉइल फ्रेंडली हो, वाटर कम लगे, तो उस कैटेगरी में मिनट अभी स्टैंड करता है। आई नॉट गोइंग टू द डिटेल, आई एम श्योर यू पीपल हु लाइक टू लर्न अबाउट एग्रीकल्चर विल गेट टू नो दैट राइट नाउ मिलेट इज द ओनली थिंग which can help your soil to get better. पानी कम लगता है तो you don't have to worry about huge amount of water which normally rice needs. And third, जो बहुत important चीज है, क्योंकि ये पूरा चीज मेंटेन हो रहा है क्लाइमेट के वैल्यू चेन में, क्लाइमेट के पूरे साइकिल में, इट्स हेल्पिंग इन मीथेन नहीं छोड़ रहा है, वो सब भी है, और वो पानी वाटर कंजर्वेशन में भी आगे जाके हेल्प कर रहा है इफ इट्स वी स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। एंड सबसे अच्छा बात मिलेट का है, तो अगर आप मिलेट एक बार सॉइल में लगा देते हो तो सॉइल में जो भी फर्टिलाइजर्स के कारण इफेक्ट हुआ है वो भी डिप्लीट कर जाता है, तो सॉइल बिकम्स हेल्दियर, तो हम भी हेल्दी होते हैं, सॉइल भी हेल्दी होता है मिलेट के साथ। सो वी स्टडीड ऑल दीज थिंग्स एंड वी फेल्ट दैट ओके इन फ्यूचर दिस कुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच कैन हेल्प अस। बट ये सब सुन के you as consumer will agree to eat it. Yes? As a consumer, आप लोग खाओ के सब सो गया, good morning. As a consumer, you have millet? All of you as a consumer, you will have millet? Yes, sir. मैं अभी मिलेट खा के दो खाओगे? बिना मुंह बनाए और रेगुलर खाओगे? झूठ बोल रहे हो, कोई कंज्यूमर मिलेट रेगुलरली नहीं खाएगा। तो मुझे खुश होना चाहिए सुन के, but actually is the consumer ready? For me, for millet, consumers like you people are not ready to have millet based products, because maida ke banisbat millet is not that appealing to eat. Your taste buds are rejecting millet right now because you are not eating it, so it's a big problem. उसके कारण क्या होगा, आपने डिटेल ये स्टडी किया आप लोगों ने? Have you all studied the retail scenario in current FMCG business? At PBA में कहीं किसी ने पढ़ा है? Basically retail है जहाँ पर आपका सीधा सीधा प्रोडक्ट्स मूव करने शुरू करता है, that is a retail chain. It can be anywhere. It can be your online, offline, दुकान हो, मॉल हो, कहीं भी, ठीक है? तो इस retail accepting millet, now retail is not you. You are a consumer. Retail is the people who are one step ahead of you, that is the market. Is market accepting millet? So retail readiness is not there. Export readiness, internationally तो लोग मिलेट जानते ही नहीं अभी, आप जानना शुरू कर रहे हैं, बहुत लिमिटेड है। अभी अफ्रीका सबसे ज्यादा है, चाइना एंड इंडिया। जहां मिलेट की बात हो, अफ्रीका से हमारे पास एक्सपोर्ट में हमें उस क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए जो एनिमल फीड हो, या हरियाणा और पंजाब से लोग आते हैं, उस क्वालिटी का मिलेट चाहिए जो एनिमल फीड हो, बर्ड फीड हो। अफ्रीका और यूएस में बहुत बर्ड फ्लू की बात है, तो मिलेट उस तरह से यूज होता है, बट एज अ रेगुलर प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन वो नहीं है उतना एक्सेप्टेबल। एंड प्राइस पॉइंट मिलेट का प्राइस ज्यादा है एज कम्पेयर टू व्हीट एंड राइस। डिमांड कम है तो प्रोडक्शन कम है, प्रोडक्शन कम है तो कॉस्ट ज्यादा है। So that is why transport is also high. So right now we are trying to work on all those things and seeing that हमें एक ही चीज लगा कि डिमांड बढ़ाना होगा, जो सबसे ज्यादा कंज्यूम्ड फूड है उस मार्केट को डिस्टर्ब करना होगा, दैट इज योर जंक फूड मार्केट। अगर हम आपको सबको मिलेट से बनवा के देते, खा लोगे? क्यों नहीं खाओगे? मिलेट का टेस्ट आपने टेस्ट किया नहीं, कैसे पता टेस्ट कैसा करेगा? रोटी पे कर रहे हैं मैम, रोटी में सबसे पहले टेस्ट कर रहे हैं मिलेट का। रोटी में किया ना, और प्रोडक्ट्स में? चलो आई गिव यू चैलेंज, बाउल फूड्स आप ऑनलाइन मंगाना, उसके 4 वेफर और कुकीज खाना, पसंद नहीं आएगा मैं इस पैसे में, मेरे प्रोडक्ट्स खाना, नहीं पसंद आएंगे तो पैसे मेरे से लेना।
especially chunks and wafers. That's what we are specializing in. Why I am talking about my products right now again is that is the way a startup should feel. Your confidence should be that much in your product that you know that सामने वाला खाएगा तो पसंद करेगा और वैसा ही आपको बनाना होगा. So I can tell you my products, if you eat it, and that's why we have said unjunk the junk food. यार कुछ जो शुगर वाले बना रहे हैं फॉर किड्स लाइक यू जिनको शुगर पसंद है, either we are using jaggery or date. Date is for अभी हमने नया न्यूट्री बार लॉन्च किया which is made out of dates. So we keep doing those kind of juggling where we can give healthier products, but it should not be in the junk category. So that's what we keep doing regularly. So that is the way, that is one more part of the product is that एक और प्रोडक्ट का आपका जब आप अपना स्टार्टअप बनाते हो, पैशनेट होते हो, आप अपने प्रोडक्ट के लिए पैशनेट होगे जरूर, बट आपका कॉन्फिडेंस कंज्यूमर की तरफ से आना चाहिए. Consumers should give you that confidence that yes, these products are good. So that's why I'm saying we have got that confidence from the consumers that especially हमारे चिप्स हो गए, चंक्स है, कुछ हमारे कुकीज भी हैं, जो it goes very good. कुछ में तो आ जाते हैं डेफिनेटली, मैंने तो आधे टेस्ट जो पसंद आया इसलिए मैंने बोला चंक वेफर. हम ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स डाल रहे हैं, ये नूडल्स एंड ऑल आल्सो पीपल मेक इट वेरी हैप्पीली कि भाई हम जब उसको वेजिटेबल्स के साथ मिक्स करके बना रहे हैं, हम तो आराम से खा रहे हैं. पास्ता, वी आल्सो हैव पास्ता. So that way it has started moving good. So that's one good thing about making it in the junk category, a big category, but we know slowly and steadily we will start standing along with other products. And how can I strongly stand with other products? By 3 साल से कोशिश करके इरके फेल होके फिर उसमें हमने ठीक किया, फिर आगे बढ़े. We tried to bring resilience in us by making a product which is consumer friendly, which consumer feels that now we can eat it. वो करके हमने रिटेल में एस्टैब्लिश किया एंड नाउ वी फील हैप्पी टू से जो हम सोचते थे मैगी के बगल में हमारा प्रोडक्ट आएगा, ब्रिटानिया के बगल में हमारा प्रोडक्ट रहेगा. Now in Delhi NCR market it has already started taking that positioning, and there is where we create resilience from a small place made by very people who don't have any knowledge about where these products are going and what it is being done. उन्होंने बनाया है, farmers है उसमें involved है, from there the product is coming and competing with the best of the FMCG brand. And that is where we feel proud when we say that okay, this is the real meaning of farm to fork, where we are bringing a product from farmers' land and we are putting it directly where the folks can reach. That is competing with the brands which are folk friendly. So there we have reached. That's our till now, that's the way we have done. So what I am saying that when you design your product should be resilient enough, and right from day one you have to plan it that way that product movement should be there. दिल से नहीं दिमाग से प्रोडक्ट को प्लान करना होगा कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो हमारे लिए तो अच्छा है, अपना बच्चा है तो किसको बुरा लगेगा, अपना बच्चा तो अच्छा लगता ही लगता है, बट ये बच्चा दूसरों को अच्छा ज्यादा लगना चाहिए. That is the way the thing should be planned, and that is the way we have done it. And thankfully right now we are not only in Delhi NCR, and so we have also gone international. We are having mark in lots of international countries also, and we are going beyond that even. Impact. I'm not talking about my product impact. I'm talking about what is the impact that you think your product will make, like my product is making. So there should be a product planning in such a way that can create a revolution too. When he starts staging his he want to save time. टाइम बचेगा तो क्या होगा, अभी के दिन में क्या चाहिए, आज के दिन में आप लोग सबसे ज्यादा मिस क्या करते हो, थोड़ा और टाइम रहता दिन में तो है कि नहीं, टाइम कम पड़ रहा है. तो कोई अगर आपका टाइम बचाएगा दिन भर का तो such a big revolution it is. So a product should be such in a such a way it should be made that it should
For you at least to start off with, it should create a revolution. Revolution का मतलब नहीं है कि वर्ल्ड वाइड रिवोल्यूशन ही हो. आप अपने इकोसिस्टम में जितना बड़ा आपने इकोसिस्टम सोचा हुआ है उसमें कोई रिवोल्यूशन लाए, तो वैसा प्रोडक्ट आपको सोचना होगा, and then it will be impactful. For me, my product is impactful. Why? Because I have not only given a good product to the masses in urban area, but I am also doing a social entrepreneurship. Agar I have 70% women workforce, tribal workforce working with me. Beyond that, what we are doing, we are also doing farmers training. We are we are doing lots of farmer training. We are across about 20 villages जहाँ पे हम बहुत सारा farmers training से लेकर के दूसरे livelihood development पे भी काम करते हैं. उनको हम अच्छी जिंदगी कैसे आप वो जिए उसका भी हम we keep teaching them how to live a better life. उनके लिए better life क्या हो सकता है? Gas, use of good hygienic way of living. We keep giving them lots of healthcare benefits. Small उनके लिए भी हम workshops कराते रहते हैं, health checkups कराते रहते हैं. So as a social enterprise, we are also into all those things besides giving them a livelihood. If we talk about us, we are having a setup where we are producing millet-based products. We are having farmer producer companies who are helping farmers to produce millet. इसके अलावा एक और हम थर्ड एंगल पे काम करते हैं, which we are really proud of. That is, we create agripreneurs. When you start having your own startup, see, I am scaling up your startup. We started with lean startup, जहां मैंने बोला यहीं बैठ के आप स्टार्टअप को बना सकते हो. लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, मैं आपको ड्रीम दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप कहाँ तक जा सकते हो. Sky is the limit. आप पहले उनको नौकरी देते हो. जमशेदपुर टाटा, आप लोगों को पता है कहाँ पर है? झारखंड का एक छोटा सा टाउन है. वो जब बना था वो क्या रहा होगा? Can you imagine? I'll give you a story about it. Why I know this story? Because where my factory is, that is मयूरभंज area. मयूरभंज के जो महाराजा थे, उन्होंने रतन जी टाटा को 1 रुपए में वो जमीन दी थी. वो जमीन एक्चुअली मयूरभंज का पार्ट था जो उन्होंने. Why? Because he showed that social enterprise to the investor who was मयूरभंज के राजा. उनको उन्होंने वो सोशल इम्पैक्ट दिखाया कि एक बार हम ये प्लांट लगाएंगे तो कितना बड़ा हम वहां के लिए कम्युनिटी वर्क करेंगे. और इस बात से उस समय में उन्होंने 1 रुपए में टाटा साहब को दे दिया था जमीन. बट इफ यू एक्चुअली सी टुडे, उनका एक ही रिक्वायरमेंट था. जो मयूरभंज के राजा थे उन्होंने एक ही चीज बोला था कि मेरे को एक अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम चाहिए, वहां पे हेल्थ केयर चाहिए. तो अगर आप कोई भी जानता है जमशेदपुर को, तो एवरीबडी नोज वहां का जो हॉस्पिटल है, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है ना, वही है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. So that is one of its kind in that area. बहुत अच्छा है. तो वो उन्होंने, उनका एक ही शर्त था कि मेरे को एक अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम देना. बट इन टूडेज डेट, what is Jamshedpur? What is Tata? Is it just that plant? उसके आसपास पूरी टाउनशिप तो छोड़ दो. टाउनशिप तो हो गया वो एरिया जहाँ पे जो डायरेक्ट स्टील प्लांट से रिलेटेड है. टाउनशिप के अलावा वहां क्या क्या हो गया? So many different subsets, so many different businesses flourishing, so many different organizations there, so many different categories of people living. अब तो मेरे हिसाब से टाउनशिप छोटा हो गया, उसके आसपास की चीजें ज्यादा बड़ी होगी. वही है ना? So that is the dream. Nobody is stopping you from dreaming that big. You can start with as a lean startup, but when you start dreaming, you can dream big also. हमारा next dream क्या है? I don't think अभी तक I have shared it with Dr. Devi also, because अभी मेरे को आने से पहले ही ये मैसेज मिला है. अभी Nagaland's government is giving us 5 acres of land to put a food park over there. जिन्होंने ज्यादा पढ़ाई नहीं करी है, hardly anything, 2, 4, 5 क्लास पास की होंगी max to max. They can't speak Hindi, but yet they are driving themselves to create their own enterprise because they saw our enterprise flourish and they felt that okay, we can also create smaller one and our enterprise will also flourish. So this is a repercussions, this is our ripple effect which we are creating in that area.
just because we showed that resilience that we can stand up and create a very nice agripreneur setup. So this is one of the biggest achievement that we feel right now, that okay, from being one startup, a small startup, now we are becoming slightly bigger. We are trying to give it to the community by helping them adapt to their livelihood. Second level पे उनका enterprise create करके, और third level when right now we will start a new work in Nagaland. We will go towards cross a state boundary, and Nagaland again it's an interior area. वहाँ जा करके हम एक और food park create करेंगे. So that's the way we moved from kitchen to national level. अब कोई पूछ सकता है ना कि भाई फायदा क्या होगा. So people who are going to start their own startup, we have increased their economic growth. उनकी livelihood में जो उनका पैसा आता है, उनके घर में जो पैसा आता है, by 250%. हमने वहाँ पर जो add किया है उनके lifestyle में changes, that is 250%. That is in the backward linkage is what I'm talking about, and in forward linkages right now, we are in Delhi NCR. We have already started moving to Punjab. Internationally, we have already gone to US, UK, Canada, Japan. So 4 or 5 countries we have already started moving. So this is our story in how many years? 3 years. अभी 3 दिन पहले 28 कोई I was in one more university. There was I was telling that 28 अगस्त 3 साल पहले मैंने अपने घर से बैठ करके एक WhatsApp ग्रुप बनाया था, जिसमें मैंने बोला था कि I am selling minute-based products. You can order on this WhatsApp group and we'll get the home delivery done. It was in Bhubaneswar. Exactly 3 years before I started with a WhatsApp group. घर से अकेले I wanted to deliver it to भुवनेश्वर में अपने आसपास अपने जानकार, because I WhatsApp group बनाए तो अपने जानकारी वाले लोगों को ही आप सेंड करोगे. So that was my 3 years before. That was August for me. And 3 years after August for me is what we are seeing right now. So what I mean to say, lean startup does not mean we'll always be lean. Slowly and steadily patna mota ho jata hai. Right? So, and it's just that you have to keep going. Well, let's do some more brainstorming. अब आप बोलोगे कि मैम ऐसे ही बोल रही इतने बड़े बड़े लोगों, ये कौन है? कोई से? नेम है? मुकेश अंबानी है? हाँ. सबसे पहले मुकेश अंबानी का ही नाम क्यों आया? अनिल अंबानी किसी को कोई नहीं याद आया? अंबानी, उनसे लेगेसी मिली, दोनों आगे बढ़े. एक ने बैंकरप्सी फाइल करी, and the other one became big, biggest industrialist and also a community figure. If you see Reliance Foundation, the amount of work they do, you are aware of Reliance Foundation? Yes. और जो गीता अंबानी आजकल काम करती रहती है, अभी सबने शादी, उनकी शादी सबने फॉलो करी छोटे बेटे की. What did you learn from that? पैसा होना चाहिए. ओके, आई ऑल्सो लर्न दैट. नेक्स्ट, और क्या होना चाहिए? ऐसी शादी का मतलब क्या था? शादी में बिजनेस को प्रमोट कर दिया उन्होंने. शादी में अपने बिजनेस का प्रमोट कर दिया. वेरी करेक्ट. और Then soft power over to be सॉफ्ट पावर, ठीक है, उन्होंने अपना वर्चस्व दिखा दिया. और यस, कोलैबोरेशन. क्या? इंटरनेशनल कोलैबोरेशन. कौन कौन है यहाँ? सैमसंग का ओनर आ गया, और कौन कौन, बहुत सारे, कितने सारे लोगों को सिंगर्स और क्या क्या आ गए. किसी ने अगर फॉलो किया है तो शादी की कितनी सारी एक्टिविटीज इंडिया में हुई. एक साल की शादी हुई ना, कितनी सारी एक्टिविटी इंडिया में. सारी और नहीं. एनी आइडिया इन्होंने क्या क्या गिफ्ट्स दिए हमें? तो क्या वो तो 10-12 दिए थे. वो तो आपके बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को दिए थे, जो हाई एंड के जो आए थे उनको क्या क्या वर्क दिए. What did they do? They picked. आपको नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर के बारे में पता है? मुंबई में जो है, वहां गए हो कोई?
वहाँ पे बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम वालों को भी उन्होंने जगह दे रखा है जो बनाते हैं और करते हैं, और उनके साथ उनका टाई अप है। वो तो एक हो गया। प्लस नीता अंबानी मूव्ड अराउंड द कंट्री और उसने अलग अलग जगह से हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के गिफ्ट्स उठाए, जिसको जितने भी आपने देखा ही कितने लोग आए बाहर से या लोकल भी, सबको जो गिफ्ट्स गए हैं वो सब लोकल हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट वालों से उठा करके उन्होंने बनवा करके भेजे। उनको पैसे आए, कम्युनिटी सर्विस। लेट्स सी द पॉजिटिव मतलब गुड साइड ऑफ इट। पैसा उन्होंने बहुत खर्चा किया, पैसा ना किया, हमें क्या करना है, राइट? और इतने लोग आए, इतने जगह रहे होंगे, इतना खाना खाया होगा, हमारे कंट्री के इकोनॉमिक में कुछ तो, इकोनॉमी में कुछ तो आया होगा। कितने सारे इमरान खाई के कितने लोग आए, कितने लोगों ने इंडिया को देखा, इंडिया की एक शादी को देखी, बिग फैट वेडिंग। हम लोग पहले फॉलो करते थे कि वहाँ इंटरनेशनल वेडिंग्स ही होती थी, आज तक मैंने नहीं देखी थी बिग फैट वेडिंग में इंडियन अच्छी वेडिंग देखी थी क्या? कोई फॉलो करता है बिग फैट वेडिंग को? There is a episode which go on in Discovery and all, where they show best of the weddings. मुझे तो लगता है अगला 2-4 साल तक अंबानी ही चलेगा वैसे। तो इंडिया में कितना बड़ा प्रमोशन हो गया, एवरीबडी इज नोइंग इंडिया इंडिया इंडिया, राइट? सो बीइंग एन इंडस्ट्रियलिस्ट, पैसा कमाना सबको है, कमा भी रहा है, ब्रांड बिल्डिंग भी कर रहा है, बट एट द सेम टाइम he is adding up to the community also. So being a enterprise, it's very important that you keep adding also, and don't forget that when you get your agency, it's just not to take it further, but to make it more bigger. Then only you can grow. So that's what Mukesh did, and Anil somewhere. ये दो वन है. So these are the owners of Big Bazaar. बिग बाजार का एक हो गया किशोर प्यानी, दूसरा हो गया डी-मार्ट का राधा कृष्ण अंबानी। इनमें क्या सिमिलरिटी है कि दोनों का एक बड़ा गवर्नमेंट चेन है, बट इन दोनों में क्या अनकॉमन है? खत्म हो गया किशोर प्यानी का बिग बाजार, खत्म हो गया। एनी आइडिया रीजन? देखो, मैं लीड स्टार्टअप से आप लोगों को मतलब वो इंडस्ट्रियल बेस्ट पॉसिबल इंडस्ट्री तक का एग्जांपल्स दे रही हूं। सेम थिंग इज देयर। क्या किशोर प्यानी ने गलत किया जो डी-मार्ट ने नहीं किया, मतलब दमानी ने नहीं किया? अगर आप एक बार अभी आप जब स्टार्टअप कल्चर को भी फॉलो करोगे, एक स्टार्टअप 5 साल का ही रहा होगा, लेकिन वो 4 बार अपनी 4 कंपनी बेच चुका होगा, है ना? क्योंकि वो फील किया मेरा बन गया, मैं किसी और को दे सकता हूँ, मुझे कोई, और मैं उसको दिल से नहीं चाह रहा हूँ, मैं दिमाग से चल रहा हूँ, मुझे पैसे चाहिए। तो दैट्स नॉट रॉन्ग, दैट्स ऑल। बट बिग बाजार और डी-मार्ट catered to Big Bazaar and D-Mart. So this is where why Big Bazaar failed and why D-Mart is yet running. This is the reason. Though D-Mart started slightly late, D-Mart अच्छा ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है कि D-Mart ने जो आइडिया लिया वो बिग बाजार से ही लिया। उसको बिग बाजार को ही देख के लगा कि हम ऐसा कर सकते थे, छोटा छोटा कर रहा था, बट ही नेवर थॉट ऑफ रेप्लिकेटिंग। बट उसने अच्छी चीजें बिग बाजार से नहीं ली। उसने जो अभी क्वेश्चन है हनान, जो उसने बोला एब्सोल्युटली करेक्ट कि बिग बाजार ने क्या किया, एंड दिस वी वर, बिकॉज आई एम फ्रॉम अ रिटेल बैकग्राउंड, हमने भी ये देखा था कि बिग बाजार वाज जस्ट फोकसिंग ऑन ओपनिंग, क्रेडिट्स वर टू हाई, वेंडर को पेमेंट नहीं करना। वेंडर, हम बोलते हैं 60 डेज का क्रेडिट, उनके वेंडर का क्रेडिट 90-120 डेज तक चला जाता था। बट क्योंकि सबको बिग बाजार में रखना है, रखे रहते थे, पैसे आ रहे नहीं आ रहे, क्रेडिट बहुत बढ़ गया, स्टोर्स भी बहुत खुल गया, ऑपरेशनल कॉस्ट कितने बढ़ गए, शैटर्ड। और उसका फायदा किसने उठाया? रिलायंस ओवरनाइट टुक ईच स्टोर्स एंड ओवरनाइट रिलायंस क्या है ना, स्मार्ट ही है ना, रिलायंस स्मार्ट आ गया। So why I'm telling all these things कि जब हम स्टार्टअप में आगे बढ़ने लगते हैं, जब मूव करने लगते हैं, जब पैसा आता है और आएगा आप लोगों के पास भी। एक बार में मैंने क्या बोला आपको, फर्स्ट सीट मनी कितना आएगा आपके पास अगर सोचोगे तो
10 लाख आएगा, तो when you are starting right now 10 लाख आपके लिए बहुत बड़ी होगी कि नहीं? उसके लिए नहीं है, गुड दैट यू आर प्लानिंग, बट 10 लाख शुरू में बड़ी रखना, लीन स्टार्टअप से ही शुरू करना, नेवर गो बियॉन्ड दैट स्टार्टिंग में। अभी हमारी भी जो स्थिति है, देयर आर टाइम्स व्हेन वी एक्सेलरेट, फिर हम खींचते अपने आप को कि नहीं 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 इतना मत स्पेंड करो, फर्स्ट लेट द रिटर्न कम, लेट इट कम। अब मार्केट हमारे को बहुत दिख रहा है, अभी मुझे भी वामोन फूड्स का मार्केट बहुत दिख रहा है, बिकॉज सब बोल रहे हैं आ जाओ, अभी मुंबई वाले बोल रहे हैं आ जाओ, पंजाब से अभी आया हुआ है, तो हम बोले नहीं, पहले जनवरी तक विल गो दिल्ली एनसीआर एंड पंजाब, मुंबई फरवरी मार्च में जाएंगे जब इधर का एक साइकिल आ जाएगा। वाई? बिकॉज मैं अपनी टेबल पे ही किशोर बियानी का फोटो लेके रखती हूँ, अंबानी का नहीं रखती हूँ, किशोर बियानी का रखती हूँ, क्योंकि वो धक्का देता है मुझे कि मुझे ऐसा नहीं होना है। Though he is too big in front of me, but yet this example is best for me to go beyond what I am doing right now and go with a very steady steps. So whenever you are thinking of a startup, definitely go lean, go one thing at a time. Always remember, if you are a startup, if you are doing something as an entrepreneur, you are giving to the society. Even if you are creating a product for yourself, you are giving to the society. You are doing good to them. So keep doing good. और हमेशा ये याद रखना, failures will never. हमने भी बहुत ये 4 साल में, it's not that I started with, I thought Bhubaneswar will be my best market in starting में. मैंने सोचा था ईस्ट इंडिया से शुरू करूँ, but East didn't work for me. I had to stop, take a pause, move to West. I studied South and then I settled in North India. So it's not easy. It's not that अभी मैं यहाँ खड़े होके बोल रही हूँ मतलब ऐसा 4 साल निकल गया. No, there will be lot of things you will face, but being a startup, being an enterprise, being a community enterprise, and industrialist is an accomplishment in itself, and you all should follow it. अभी आधे लोग तो सो रहे हैं, उनको लग रहा है बस इसमें तो क्वेश्चन नहीं आना मेरे को एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है, बट आई वुड लाइक टू डू सम फैक्ट चेक्स. कुछ लोग तो ऐसे हैं जैसे यहाँ मैम बैठी है, सॉरी आई मिस्ड योर नेम, भूल जा रही हूँ मैं बार बार. आपका क्या नाम है? अविरल. अविरल का जैसे लाइक गोइंग हाई इन द स्काई, आई एम श्योर और कुछ लोग होंगे जो बोल नहीं रहे अभी. सो गोइंग हाई, क्या अगर ये पावर हमें मिल जाए तो व्हाट पावर? अंबानी वाला पावर है कि नहीं? मेरा तो मन करता है, अविरल बोल रहा है ना, लेकिन मेरा तो मन करता है कि वो पावर मुझे मिल जाए तो अभी मैं तो उससे ज्यादा अच्छा कर लूं. नहीं मन करता? बिल्ड, वेरी करेक्ट. सो लगता तो है कि पावर मिल जाए बट होता नहीं है. सो दिस इज द रियल स्टोरी ऑफ द स्टार्टअप वेयर अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, अभी आप अगर डाल दो अपने सोशल मीडिया पे कि यू वांट टू स्टार्ट एन एंटरप्राइज, यही बोल दो तो 10 लोग अगल बगल फ्रेंड जूता ही डालेंगे, है कि नहीं? Picture of it. Please do it. I have also done job. I have also seen the 2 part of the system. What I feel right now, which I missed in my life, was जब मैं ग्रेजुएशन लेवल पे थी तभी मैंने क्यों नहीं सोचा. अगर मैं उस समय सोची होती तो शायद आई वुड हैव बीन इन अ डिफरेंट लेवल, बिकॉज उस समय में मेरे को लायबिलिटीज नहीं थी. मुझे ये नहीं सोचना था कि मेरी बेटी का ग्रेजुएशन का पैसा मुझे भरना होगा, तभी मेरे को नहीं सोचना होता ना. अभी इफ यू ऑल स्टार्ट अ स्टार्टअप, क्या सोचना होगा? आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? अगर आपके दिमाग में क्या है कि स्टार्टअप स्टार्ट करना है, सबसे बड़ा हिंड्रेंस क्या है? सो अभी एक ही चीज है. आई नो अभी आपके पेरेंट्स यहाँ आ जाएंगे तो मेरी क्लास लगनी है, मुझे पता है. आई टेल यू वन इंटरेस्टिंग स्टोरी. अभी मैं बता रही थी, माई डॉटर इज ऑल्सो एट समवेयर एट योर लेवल. She is doing her final year. She is a major in psychology and minor in digital marketing, and she wants to study consumer behavior. तो अभी recently for 2 months they were in Jaipur, 3 of the friends, जो वहाँ पे कुंदन बेस्ड मर्चेंट को एक रेगुलर ब्रांड
लॉन्च करने के लिए हेल्प कर रहे थे, लाइक ब्लू स्टोन एंड कैरेट लेन। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो अबाउट कैरेट लेन एंड ऑल। इट्स अ कैरेट लेन तनिष्क का एक लोअर रेंज है जो रेगुलर यूज के लिए जो ज्वेलरी होती है उसमें थोड़ा रेंज यूज का कम होता है, गोल्ड ओनली बट एट अ लेस। तो से कुंदन बेस्ड एक मर्चेंट को वो हेल्प कर रहे थे, बोलो कि उनका एक लोअर रेंज लॉन्च है। तो सूत्रा करके वो दैट ब्रांड है, उनका वो तोहफा करके एक रेंज लॉन्च कर रहे थे। When these three were into the eagerness of developing it, so they did all the research, वो जाके कारीगर से भी मिले, डिजाइनिंग करी, वो शूट करा, फोटो शूट करा, प्रोडक्ट मतलब पूरी मतलब प्रोडक्ट से रिलेटेड पूरा काम किया, 2 महीना दिन रात जग के काम किया। they launched it and thankfully 2 महीने में जितना बिजनेस चाहिए था उनको उससे ज्यादा इन्होंने ला के दिया। They committed कि इतना बिजनेस हम लाएंगे because they did that strategic planning और consumer behavior उतना वो स्टडी कर लिए थे। They did it. After that, I was there. The 3 of them said that what we feel that we should launch our own brand in jewelry. This is a very nice industry. बहुत कम players है, and especially woman player नहीं है, lady player नहीं है, female player कम है। तो when I heard that, मैंने कहा good idea. It sounds very good. And like I am telling you people, I told them also कि सबसे पहले मैं 10 लाख दिला दूंगी, उसके बाद फिर वापस से 20 लाख दिला दूंगी, इंक्यूबेशन कर लो, इस स्कीम से और इतना आ जाएगा। और आजकल तो स्पेशली ज्वेलरी में इफ यू गो विद कम्युनिटी तो कोऑपरेटिव बना करके आपको 20 करोड़ तक आ सकता है। तो मैंने इतना सारा बता दिया। ऑल 3 were sitting listening to me. 2 of them said that अभी मेरे पेरेंट्स सुनेंगे आप बात करें तो आपको बोल देंगे कि इनसे आप ताल्लुकात मत रखो, आप गलत सिखा रहे हो। So that was the first reaction of the friends who came in, and my daughter was that, what are you telling? None of the mothers talk like this. So then I realized, okay, because I have gone through this process, I can understand that. But maybe few years back, or maybe if I would have been like this, मैं भी अपनी तरह चाहती मेरी daughter को भी that she should go for campus. But current scenario जो आपने अभी 2-3 दिन पहले सुना भी होगा, you have been listening to so many people. Current scenario and the flow of funds, schemes, government schemes इतने अच्छे हैं that I feel that ये चीज when I was in my college days आता तो I would have done very good projects अभी तक. So that's the good thing about it. So if you people want, convince your parents. It's not difficult. Convince किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है? Possible ही नहीं है। वो कुछ तो सारे ला रहे हैं, possible ही नहीं है। What I feel, I know it's not that हर जगह चलेगा, but my thought is that पेरेंट्स क्यों नहीं, मैं जो थोड़ा बहुत एज ए पेरेंट रिसर्च करती हूँ, मैं क्यों अपने बच्चे को उस चीज पे नहीं जाने दूंगी? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। क्यों? एक ही बात, खुद से तो उठ नहीं सकता, बिजनेस क्या करेगा? है कि नहीं? कितने लोगों के पेरेंट्स ऐसा बोल सकते हैं? खुद से तो उठ नहीं सकता, देख लो हाथ खड़े हो गए। खुद से 10 रुपए तो मैनेज नहीं होता, फंड्स क्या मैनेज करेगा? खर्चा इतना करता है, बिजनेस का पैसा आएगा सब तो डुबा देगा। And there will be many who will say नहीं, इतना पढ़ाया है, नौकरी करनी है। Why? Because they have not seen this environment, they have not seen this startup culture, what is going around you right now. So, like by giving your starting, like when you were studying क्या होता था? मम्मी बैठ के पढ़ाती थी ना, मान के पढ़ो 4 से 6 पढ़ना ही पड़ेगा। अब पढ़ाती है, अब उनको पता है, अब तो ये पढ़ते हैं, अब मुझे पढ़ा के भी कुछ नहीं होगा, राइट? तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना पड़ेगा, जिसको करना है डेफिनेटली। एंड आई फील ऑल ऑफ यू शुड थिंक ऑफ, एंड दिस इज द राइट टाइम टू थिंक। व्हाई? बिकॉज अभी आपको वो सिनेरियो यहाँ पे मिल रहा है, रोकने वाला कोई नहीं है। स्टार्टअप को आगे नहीं भी लेके जाते हो आप, सपोज 2 साल में आप सोचते नहीं मुझे नहीं करना, सपोजिटली, तो भी आपके पास ऑप्शन है वहीं तक छोड़ने का। यू आर नॉट कंपेल्ड टू गो बियॉन्ड दैट ना, अगर वो नहीं समझ में आ रहा है, बट एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई। Don't let your fresh mind and brain, which has so many ideas, to stop here. I feel right now, मुझे बड़ा मन करता है कि I would have studied in this time, which I am not. तो बहुत कर सकते थे। I was in a university, हैदराबाद में एक यूनिवर्सिटी है, I'm missing its name. वहाँ थे, I saw so many girls who was doing that small startup. It was so amazing. वो फ्लावर को ड्राई करके ज्वेलरी बना रहे थे।
सिंपल मेहंदी की उन्होंने एक इंडस्ट्री बना के रखी हुई थी, क्योंकि वहां लोग मेहंदी ज्यादा लगाते हैं ना। तो देयर वर 6 लेडीज जिन्होंने अपने एक ऐप बना लिया था, छोटा सा मेहंदी ऑर्डर। तो आप वहीं पे अपना डिजाइन सेलेक्ट करो, आप जो डिजाइन सेलेक्ट करोगे वैसी ही मेहंदी की एक चली जाएगी आपके पास लगाने को, एंड वो पहले से ही आप प्री पेमेंट कर दो। कैन यू इमेजिन मेहंदी इंडस्ट्री कैन गो लाइक दिस? यहाँ हम रास्ते में देखते हैं लोग बैठ के बना करते रहते हैं, बट वहां पे मेहंदी इंडस्ट्री उन्होंने ऐसे कॉलेज में बना रखा था। मेरे ये सोशल एंटरप्राइजेस है, दे आर मेकिंग सच ब्यूटिफुल मशरूम अचार। गांव के हैं तो वो उस हिसाब से ही बना रहे हैं, तो दे आर मेकिंग वेरी गुड मशरूम अचार। देन आप एक साल लीव्स होते हैं उसके, वो अभी कप्स एंड बाउल्स बनाना शुरू किए हैं, प्रेस करके ही बना रहे हैं, बट डिजाइन्स आर वेरी इनोवेटिव which can be used in the urban market. So what I am saying that if you start thinking, you can think of it. It's not necessarily that अभी आप अगर start कर रहे हो तो you will lose something, but you never know. In 2 years, you can definitely gain something. So I will suggest that all of you should think over it, should start doing it, because beyond all means, I did it. I tried my level best. I also went through lots of roadblocks at my age. 4-5 साल पहले, my parents also said, नौकरी छोड़ क्यों रहे हो? When I finally decided to leave, they were very scared, and I am leaving my job. So वो हमेशा, because they can't think beyond it. But yes, slowly and steadily you can make them feel that. One more caution जो मुझे लगता है आजकल why जॉब इज, आपको कैंपस मिलेगा, जरूर मिलेगा सबको, लेकिन आजकल जिस तरह से लेओवर्स भी हो रहा है, अभी रिसेंट किसका हुआ? रिसेंट लेओवर, मास लेओवर, गूगल अब भी, बस इट्स जस्ट रिसेंट, राइट? सो दीज आर ऑल्सो द थिंग, इफ यू हैव समथिंग रेडी विथ यू, you have something to fall back on. So it's just my thought, my ideas. I feel current scenario is very good for startup, lean startup with minimalistic product. You should start thinking on, and you should think of creating something like I created in 3 years. Who knows? You can create in 2 years, right? Right? She's ready. Who all are ready? By the way, मेरे इतने बात के साथ कितने लोग 2 जन ही रेडी हैं? अभी नहीं, कभी भी। कौन कौन स्टार्टअप करने को तैयार? मैम, दिस नीड्स टू बी कैप्चर्ड। 15 से 40-50 तो हो गए। थैंक यू सो मच, दैट्स नाइस, बट इन ऑल दीज थिंग्स यू नीड टू कीप टॉकिंग। Okay, there are few memes and all. I think I talked a lot. You don't need to. This is one thing I want to tell you, which I feel आपने बोला। अभी अगर मैं सोच रही हूँ कि आप लोग क्या सोच रहे होगे? क्या सोच रहे होगे? क्वेश्चन आंसर, What a crap. No? But I'm happy at least 50-60 people you felt that you should do it. Why? Because this is what I want to quote. This I keep it always very much close to me, what Dhirubhai Ambani said. Can somebody read it? If you don't build your dream, someone else will hire you to help them build that. So please remember this. I'm sure 50 का 100 भी होगा. But my only one thing which I want to say is that करना आगे की बात है, but start जरूर करना. You are getting a very good incubation over here. So please, कुछ भी एक प्रोडक्ट जो आपके दिमाग में आए, स्टार्ट तो जरूर करो. कितना आगे जाएगा वो तो बात की बात है. So please do start. So how many of you are starting? अब तो टोटल उठा लो. मैं ये नहीं बोल रही हूँ आगे भी ले जाना है. चलो, ग्रेट. थैंक यू सो मच. थैंक यू.